Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 3 of Pakistan Studies for class 10th. Hopefully you all are doing well. Allah Ta'ala हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. Students, in our previous lectures of chapter number 6, we discussed the era of Zulfikar Ali Bhutto, that was from 1971 to 1977. And in this era we discussed the economic reforms of Zulfikar Ali Bhutto, in which he nationalized the industries and introduced labor reforms and educational reforms and reforms in agricultural sector. After discussing all these reforms, in your next pages of your book, on page number 8 and 9, there is a topic, impact of nationalization on इंडस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड. यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन की, तो उस नेशनलाइजेशन का इंडस्ट्री, एजुकेशन और ट्रेड डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पेक्ट हुआ, उनके क्या असरात मुरतब हुए. ये असरात दो किस्म के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि इन दोनों पेजेस पे क्लियरली दिए हुए हैं. आप इन दोनों पेजेस को अच्छी तरह से रीड करके और तकरीबन हर इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसके 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर में आए तो आपको पहले से याद हो. नाउ वी मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. बट बिफोर डिस्कसिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is important to know about some historical background of the constitution. Hopefully you remember that in class 9th we studied that at the time of the establishment of Pakistan in 1947, Pakistan obviously was not having its own constitution. So that hopefully you remember that what was introduced as the temporary constitution of the country. Yes, you are right. It was Indian Act of 1935 that was adopted as the temporary constitution of the country with few amendments. Then in 1949, objective resolution was passed. Objective resolution was passed by Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, and it was about the Constitution of Pakistan, that while making the Constitution, what things should be taken care. पाकिस्तान का आइन बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाएगा. So objective resolution provided the base for the new constitution of the country. First constitution of Pakistan was introduced in 1956. After the introduction of objective resolution in 1949, the work for the making of constitution became easy. But even then, it took 9 years to make first constitution, from 1947 to 1956. But unfortunately, due to some reasons, this constitution could not work for much time, and it was abolished in 1958. After that, another constitution was introduced in 1962 by President Ayub Khan. So up till now, we have 3 constitutions in the country. The first one was in 1956, the second came up in 1962, and the third one in 1973. 1973 में इंट्रोड्यूस होने वाला थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या आइन से क्या मुराद है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन या डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ a set of rules and regulations according to which a state runs its affairs. In other words, it can be said that a set of rules which guides a state.
यानी कवानीन का ऐसा मजमुआ जिसकी बुनियाद पर कोई रियासत अपना इंतज़ाम चलाती है उसको आइन या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सिंपली वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। Okay, our today's topic is key aspects of the Constitution of 1973. It is long question number 7 in your exercise also, and very important question regarding exams. That is key aspects of the Constitution. So students, you have to learn it by heart so that you can attempt it in the examination. 1971 में जब भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो चुका था, चनांचे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर काम शुरू किया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी दूसरी इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे भी काम शुरू किया और अप्रैल 1972 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर किया गया, जिसको अगस्त 1973 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के नाम से नाफिज कर दिया गया। इट्स फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मीन्स स्टार्ट ऑफ एनीथिंग। उर्दू में हम इसके लिए इफ्तिताहिया, आगाज़ या इब्तदाइया के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट, बुक या आर्टिकल के स्टार्ट में जो तमहीदी पैराग्राफ होता है इट इज़ कॉल्ड प्रीएम्बल, जिसमें उस किताब का तारुफ या इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है। लाइक द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956 एंड 1962, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में 1956 और 62 में और इसी तरह से अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। अकॉर्डिंग टू विच सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वुड यूज़ देयर पावर्स एज अ सेक्रेड ट्रस्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। सोवरेनिटी मीन्स इक़्तिदार आला, यानी पाकिस्तान में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। हाकमियत आला अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे सोवरेनिटी डिफरेंट लोगों के पास है। जैसा कि किसी मुल्क में सदर या प्रेसिडेंट आला इख्तियार रखता है, कहीं पे बादशाहत है तो वहाँ सोवरेनिटी बादशाह के पास होती है, कहीं पार्लियामेंट आला इक़्तिदार की हामिल होती है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पर बना और एक इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान में इक़्तिदार आला या सोवरेनिटी अल्लाह ताला के पास है। और दुनिया में जो पावर अल्लाह ताला ने मुंतखब नुमाइंदों को, लोगों के नुमाइंदों को दी है, वो उसको एक अमानत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और कुरान और सुन्नत के हदूद में रहकर अपनी पावर्स को यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Like the constitutions of 1956 and 1962, the third constitution of Pakistan is also a written constitution. It is a written document and it comprises on 280 articles, 12 parts and 6 judicial records. Number 3, it is a federal constitution. This topic is also given as a short question number 7 in your exercise. So the whole paragraph in your book will be answer of that question. 1973 Constitution was a federal constitution.
फेडरल मीन्स वफाकी, ये एक वफाकी आइन था। फेडरल से मुराद है कि ऐसा आइन जिसमें एक मुल्क कई स्टेट्स या प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लाइक पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं जिनकी अपनी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। The Federation of Pakistan consists of 4 provinces, Federal Capital Islamabad and adjoining tribal areas which are called FATA. FATA stands for Federally Administered Tribal Areas and PATA, PATA, Provincially Administered Tribal Areas. FATA से मुराद वो कबायली इलाके हैं जिनका इंतज़ाम वफाकी हुकूमत के पास है और पाटा वो कबायली इलाके जिनका इंतज़ाम सूबों के पास है, जैसा कि KPK और बलूचिस्तान के पास पाटा के ट्राइबल एरियाज़ हैं। नंबर 4 इज़ सेमी डिजिट कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेमी डिजिट कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तब्दील करना इंतहाई मुश्किल था। A 2/3 majority parliament, both houses of parliament, National Assembly and Senate is required to bring any amendment in the constitution. यानी इससे पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशंस 1956 का फ्लेक्सिबल था जिसमें तब्दीली करना, चेंज करना आसान था, और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था जिसमें तब्दीली करना बहुत ही मुश्किल था। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें जो तरीक़ाकार बताया गया है उसके मुताबिक तब्दीली लाई जा सकती है। नंबर 5 इज़ नेशनल लैंग्वेज। उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस में उर्दू के साथ साथ बंगाली वॉज ऑल्सो द नेशनल लैंग्वेज, बट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1973's कॉन्स्टिट्यूशन ओनली उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज and English was declared as the official language of the country. But it was also said in the constitution that in a period of 15 years, arrangements would be made to implement the status of Urdu as the official language. कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए 15 साल के अरसे में इक़दामात उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। Number 6 aspect of the constitution is that it is an Islamic constitution. Islam has been declared as the state religion and it has been declared that essential for the president and prime minister to be Muslims. Only a Muslim can be the prime minister or president of the country. And also the official name of the state was declared as the Islamic Republic of Pakistan. It encourages the practice of the Islamic mode of life among the citizens. Steps will be taken to abolish interest. सूद के ख़ात्मे के लिए मुल्क में इक़दामात उठाए जाएंगे और इस्लामिक टैक्सेस को मुल्क में एनफोर्स कराया जाएगा। These were called the Islamic clauses or Islamic reforms in the 1973 constitution. Number 7 is independent judiciary, यानी आज़ाद अदलिया। The judges are paid handsome salaries and have job security so that they can work independently. And the judiciary has been separated from the executive. What is executive? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इंतज़ामिया।
You must remember that in class 9th I have told you about 3 organs of the state. Do you remember? कोई भी स्टेट जो है वो काम करने के लिए 3 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होती है. कौन कौन से? यस, पहला लेजिस्लेचर, मुकन्नना लॉ मेकिंग बॉडी. सेकेंडली एग्जीक्यूटिव, इंतज़ामिया. और थर्ड जुडिशरी, अदलिया. ये 3 इदारे मिलके मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, इसलिए इनमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. अगर ये तीनों इत्तफ़ाक़ राय से काम करें तो मुल्क में तरक्की होगी और बदअमनी और बेचैनी से मुल्क बचा रहेगा. नंबर 8 पॉइंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लिमानी आइन. अकॉर्डिंग टू द 73 कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल असेंबली is elected for 5 years and parliamentary form of government was implemented in the country. इसका क्या मतलब है? It means the head of the country is the president. सदर पाकिस्तान जो है वो मुल्क का सरबराह होता है और बराए नाम इख्तियारात का हामिल होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट. इंतज़ामिया का सरबराह वज़ीर आज़म होता है और वही असल इख्तियारात का मालिक है. प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म जो है वो नेशनल असम्बली में अक्सरियत से मुंतखब होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन की बरतरी. आइन को सब पर बरतरी हासिल है और जो भी कोई शख्स अगर इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है तो उसे गद्दारी समझा जाएगा और आइन के मुताबिक उसको इसकी सज़ा दी जाएगी. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस. 1973 के आइन में कुछ इंस्टीट्यूशंस यानी कुछ आइनी इदारे कायम किए गए हैं. उनके नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस. तो आप वहाँ से ये नाम याद कर लें, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल ओम्बड्समैन का इदारा भी शामिल है. इसका मतलब है वफाकी मुहतसिब. मुहतसिब यानी एहतसाब करने वाला. ये इदारा एहतसाब करने के लिए है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स मुल्क में काम कर रहे हैं वो अपनी लिमिट्स, अपनी हदूद के अंदर काम करें और मुल्की इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में वो मुल्की मफाद के लिए काम करें. बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 ऐवानी मुकन्नना. 2 ऐवानी मुकन्नना से मुराद है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होगी. अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. बाय मीन्स 2 एंड कैमरल मीन्स हाउसेस, चैम्बर्स. The upper house is named as Senate and the lower house is called National Assembly. In previous 1956 and 1962 constitutions, they were unicameral legislature, यानी वो यक ऐवानी मुकन्नना एक ही हाउस पर मुश्तमिल थी जो कि कौमी असम्बली थी. लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में it was bicameral legislature. The provinces have been given equal representation in the Senate and it was a permanent house. It was elected for 6 years and the number of total members of Senate were 105. The second house, the other house, is National Assembly. It has 342 members. In this way, the total number of the Parliament
is 446. 104 members of National Assembly, 104 members of Senate, and 142 members of National Assembly. So Parliament makes 446 members. Parliament is also called Majlis-e-Shura. The last point is fundamental rights. Fundamental rights यानी बुनियादी हुकूक. According to the Constitution of 1973, the citizens have all the fundamental rights. It means the basic rights of the people are secured in the Constitution. Basic rights कौन से होते हैं? What is meant by fundamental rights? यानी fundamental right means the basic rights. तो basic rights कौन से होते हैं? Basic rights are included right to live, right to move from one place to another, freedom of thought and expression and speech. यानी कि पाकिस्तान के शहरियों को इजहार राय की आज़ादी और एक जगह से दूसरी जगह रहने की आज़ादी और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन में हासिल है. The Parliament and Provincial Assemblies cannot make any law that negates any fundamental right. कि ना ही सूबाई और ना ही पार्लियामेंट कोई भी हुकूमत जो है वो ऐसा कोई कानून पास नहीं कर सकती जो कि लोगों के बुनियादी हुकूक से निगेट करता हो, यानी उनकी मुखालफत करता हो, उनके ख़िलाफ़, बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ कोई भी किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो कोई कानून बना सके. So students, this is all for today's lecture, and now get ready for the homework. Do learn and write long question number 7 and short question number 7 in your exercise of chapter number 6. Short question number 7 is, why is the 1973 Constitution called the Federal Constitution? And long question number 7 is, describe the important aspects of the 1973 Constitution in detail. This question is present in many of the past papers, so it is important to learn it. Thank you. Stay blessed.